خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج آپ سب کے درمیان خدا کا خادم بوسہ اقبال خدا کا کلام بیان کریں گے، اور خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب سے ہم دیکھیں گے، چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ہاللویا۔ یہ کلام بہت سے خادموں نے بیان کیا ہے، جس طرح خدا نے انہیں گائیڈ کیا انہوں نے بیان کیا۔ خدا نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ اس کلام کو آپ تک پہنچاؤں۔ بہت سے خادموں سے میں نے سنا بھی ہے، اور کئی ایک جگہ پر عبادتوں میں بیان بھی کیا۔ اس آیت کو جب میں نے پڑھا کہ خدا نے جب انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کو بنایا ہے، جب خدا نے کائنات تیار کر لی تو اس نے زمین پر نگاہ کی۔ جب خدا نے زمین پر نگاہ کی تو زمین پر بہت سے ذرے تھے۔ خدا نے زمین سے ایک ذرے کو اٹھایا اور اسے اس نے وجود میں تیار کیا۔ جب اسے اس نے ایک وجود بخشا تو لکھا ہے کہ اس کے کلام کی صداقتوں میں اس کے 2 باب اور اس کی 7 آیت میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ آمین۔ اب جو پہلا انسان خدا نے بنایا وہ مٹی سے بنایا ہے۔ ہاللویا۔ کیونکہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اسے کہا اب تم مجھ سے بول۔ خدا انسان سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا انسان سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب اس نے اس آدم کو تیار کیا تو کہا کہ اس کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب پہلا انسان جو کہ مٹی سے بنا ہے، تو دوسرا انسان اس نے جب تیار کرنا تھا تو آدم پر اس نے گہری نیند بھیجی، اور جب اس نے آدم پر گہری نیند بھیجی تو کلام کی صداقتیں بتاتی ہیں کہ خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور اس کی جگہ اس نے گوشت بھر دیا، اور اس طرح دوسرا انسان جب خدا نے تیار کیا تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے ہڈی سے اسے بنایا ہے۔ آدم مٹی سے بنا، ہوا ہڈی سے بنی ہے، اور ان دونوں کو اس نے باغ عدن میں رکھا کہ اس باغ کی باغبانی کرے۔ اور پھر یہ جوڑا جب تیار ہو چکا تو اس جوڑے کے سبب سے کلام کی صداقتیں ہمیں بتاتی ہیں، پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب میں، کہ ان کے میل اور ملاپ سے خدا نے تیسرا انسان تیار کیا ہے۔ یعنی 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا۔ یعنی کہ تیسرا انسان خدا نے پیدا کیا ہے آدم اور ہوا کے وسیلہ سے۔ ہاللویا۔ یعنی کہ اب خدا کا یہ ایک منصوبہ ہے، خدا کا ایک یہ طریقہ کار ہے کہ خدا نے پہلے کو مٹی سے اور دوسرے کو ہڈی سے اور تیسرے کو اس نے آدم اور ہوا کے وسیلہ سے اس نے پیدا کیا۔ مگر جب آدم اور ہوا کی زندگی میں گناہ آ گیا تو خدا نے پھر اپنے منصوبے کو، اپنے ارادے کو تخلیق کیا۔ اب چوتھا انسان اس نے پیدا کیا، کیونکہ آدم اور ہوا کے گناہ کے سبب سے گناہ دنیا میں آ چکا ہے۔ انسان گناہ کی حالت میں تھا، گناہ ان میں جنم لینے لگا، گناہ کی پیدائش ہونے لگی۔ اور جب خدا نے اپنے ارادے کو چاہا تو اس نے ایک اور انسان کو پیدا کیا ہے، ایک اور انسان کو اس نے پیدا کیا۔ وہ انسان
इंसान की ख्वाहिश से पैदा नहीं हुआ। बाइबल हमें बताती है, मत्ती की अंजील में अगर हम देखें उसके पहले बाब में, तो उसकी मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। आमीन। अब यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बाइबल हमें बताती है कि वो एक कुमारी से पैदा हुआ है, उस कुमारी से जिसे हर ज़माना के लोग मुबारक कहते हैं। हर मज़हब उस औरत के ताल्लुक से जिसे हम मुकद्दसा मरियम कहते हैं, हम मुकद्दसों की वो माँ है, उसके वसीला से यीशु मसीह की पैदाइश हुई और कुमारी से पैदा हुआ। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह के आ जाने से गुनाह का कफ़ारा हो चुका है, गुनाह का कफ़ारा हो गया। अब यीशु मसीह का आना हमारे लिए बरकत का सबब बना, हमारे लिए निजात का सबब बना, क्योंकि खुदा का ये इरादा है कि हम निजात पाएँ और खुदा तक पहुँच सकें, क्योंकि गुनाह ने हमें खुदा तक पहुँचने नहीं दिया, क्योंकि गुनाह इंसान के अंदर था और खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा, अपने कलाम को भेजा, क्योंकि लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। जब यीशु मसीह आया तो उसने गुनाह का कफ़ारा दिया। अब यीशु की मानिंद तो कोई पैदा हो नहीं सकता, और इससे पहले गुनाह का कफ़ारा हो ना सका, तो फिर हमारा मेल खुदा के साथ कैसे होगा? फिर कैसे? क्योंकि हम बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह ही एक ऐसी हस्ती थी जो हमारा दरमियानी बना है, और उसने हमें एक रास्ता दिया है। जब उस रास्ता को हम देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि यूहन्ना के ख़त में, यूहन्ना का जो ख़त है, पहला ख़त, उसका 3 बाब, यहाँ लिखा है, उसकी 9 आयत में, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। अब बाइबल हमें ये बताती है, खुदा का कलाम बताता है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। अब हम खुदा से किस तरह पैदा हो सकते हैं? हम किस तरह गुनाह से बच सकते हैं? ये बहुत अहम हमारे लिए एक सवाल है कि हम खुदा से किस तरह पैदा हों, कैसे? क्योंकि बाइबल बताती कि जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं कर सकता, मगर यीशु मसीह का आना हमारे लिए बरकत का सबब बना है। हर लानत से उसने हमें छुड़ा दिया है, हर गुनाह से उसने हमें बरी किया है। हालेलुया। अब अगर हम देखते हैं तो हम खुदा से किस तरह पैदा हों। यूहन्ना की अंजील में हमें एक शख्स नज़र आता है जो यीशु मसीह के पास आया और उसे कहने लगा, ए रब्बी, ए उस्ताद, तू जो मुझे दिखाता है वो कोई दिखा नहीं सकता। हालेलुया। मगर यीशु ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे निजात का रास्ता दिखाया, क्योंकि लिखा है कि जब तक तो कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। अब वो कहता है कि तू नए सिरे से पैदा हो, क्योंकि जो पहले वो पैदा हुआ वो इंसानी ख्वाहिश से था। अब वो यीशु मसीह से कहता है कि तू नए सिरे से पैदा हो। तो निकोदेमुस कहता है, क्या मैं दोबारा माँ के पेट में जाऊं और फिर पैदा हूं? तो उसने कहा, नहीं। कैसे पैदा होना है? तो बाइबल में लिखा है, रूह और पानी से। हमें रूह और पानी से पैदा होने की ज़रूरत है, ताकि, क्योंकि लिखा है कि जो बपतिस्मा लेता है वो मसीह में दफन होता है और मसीह में जी उठता है। हालेलुया। तो हमें
नए सिरे से अगर पैदा होना है तो हमें दफन होने की ज़रूरत है। बपतिस्मा के वसीला से हम दफन हों और बपतिस्मा के वसीला से हम जी उठे ताकि हम दोबारा पैदा हों। हालेलुया। और हमारी पैदाइश रूह और पानी के वसीला से हो ताकि हमारा मेल और मिलाप खुदा के साथ हो सके, ताकि खुदा हमारे साथ हम कलाम कर सके, खुदा हमारे साथ बातचीत कर सके। क्योंकि यहाँ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो नए सिरे से पैदा होता है ना वो मर्द है ना वो औरत है, बल्कि वो मसीह में है, और जो मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। जो गुनाह हमने किए हैं वो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम इंसानी बदन नहीं रखते बल्कि हम रूहानी बदन रखते हैं, और वो रूहानी बदन खुदा हमें देता है। जिस्मानी बदन उतर जाता है और हम पर रूहानी पोशाक आती है, क्योंकि हम नए सिरे से पैदा होते हैं। और बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। आमीन। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। हालेलुया। आज अगर हम खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, अगर हम खुदा से राब्ते में रहना चाहते हैं, तो मसीह की इन बातों पर, उसके कफारा पर ईमान लाना होगा। और यीशु मसीह ने ही कहा कि मरकस की अंजील में उसने कहा कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। अगर आप मुजरिम ठहरना चाहते हैं तो फिर बपतिस्मा आप नहीं लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम निजात पाएं तो फिर मसीह पर ईमान लाएं, जिसने आपका कफारा दिया, जिसने कहा कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए मसीह पर ईमान लाएं और बपतिस्मा लें और नए सिरे से पैदा हों, ताकि आप खुदा के राब्ते में आ सकें। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हम जब खुदा चाहेगा हम जमा होंगे, और फिर मैं आपके दरमियान आऊँगा और खुदा का कलाम आप तक पहुँचाऊँगा।